السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریوں اور تبادلے کا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریوں اور تبادلوں کی منظوری دی، جس کے مطابق موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا۔ صدر این ڈی یو لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی مقرر ہو گئے۔ ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کور کمانڈر گجرانوالہ، جبکہ کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات ہو گئے۔ میجر جنرل عاصم ملک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل بنا دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف نے ملاقات کی۔ کور کمانڈر کانفرنس، پاک فوج میں تقرریاں اور تبادلوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے بھی الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی خدمات پر تعریف کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، پاک فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس اور دیگر معاملات پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران پاک فوج میں تقرریاں اور تبادلوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی خدمات کی تعریف کی اور نئی پوسٹنگ پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف علوی نے قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کے لیے صدر، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے۔ مسودے کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی۔ موجودہ چیئرمین کو 4 سال کے لیے دوبارہ بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب کو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی تعیناتی تک موجودہ چیئرمین کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ چیئرمین نیب صدر مملکت کو تحریری استعفیٰ بھجوا سکتے ہیں۔ آرڈیننس کو نیب دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 کا نام دیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت احتساب عدالتوں کے ججز کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا۔ صدر جتنی چاہیں احتساب عدالتیں قائم کر سکیں گے۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ صدر مملکت عارف علوی نے ڈپٹی چیئرمین نیب کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر کے مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کچھ روز قبل ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو ارسال کیا تھا۔ وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں چیئرمین نیب کی تعیناتی صدر مملکت کریں گے۔ قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی۔ چیئرمین نیب کے نام پر اتفاق نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ نئی چیئرمین نیب کی تقرری تک پرانے چیئرمین فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ ملک بھر میں نیب کی 90 عدالتوں کے قیام کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ both leaders of the house and opposition۔ اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی، کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہے نیشنل اسمبلی کے وہ تشکیل دیں گے، 6 گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے، 6 جو ہیں اپوزیشن بینچز سے۔ جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے۔ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگولر چیئرمین کے پاس ہوں گی۔ کم سے کم پاکستان میں کوئی ایڈیشنل 90 عدالتیں نیب کی ہونی چاہیے، جس میں سے 30 نئی عدالتیں ہم نے اسٹیبلش کر دیں اور وہ فنکشنل بھی ہیں۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری اپنی بات پر قائم، کہتے ہیں چیئرمین نیب کی تعیناتی پر اپوزیشن لیڈر سے نہیں اپوزیشن سے مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن کو دعوت ہے، اگر آرڈیننس میں مزید کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ ایک آرڈیننس جو ہے وہ ہم
ला रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है वो एक्ट भी इसका आएगा। और अपोजिशन को हम ये दावत दे रहे हैं कि आप और भी अगर अमेंडमेंट्स इसमें चाहते हैं वो भी हमें डाल दें। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करें। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें और आराम से अपनी मुशावरत कर लें। क्योंकि देखिए ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। थोड़ी बहुत भी उनमें खुद शर्म हया हो तो खुद ही ओहदे से लहदा हो जाए। मतलब मुझे आप बताइए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदा जो नैब में एक्यूज है वो इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझसे ही मुशावरत करें। मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। जजेस को गैर कानूनी काम के लिए मजबूर किया जाता है। साकिब निसार से दबाव में फैसले किए गए। हम जस्टिस खोसा को ढूंढ रही है। फर्द वाहिद ने अदलिया पर मर्जी मुसलत करने की कोशिश की। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी गैर आईनी होगी। पिंडोरा लीक्स पर सब चुप हैं। हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरखास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास। हम सुनते हैं क्योंकि दरखास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमजोरी थी जो इनके हाथ में थी। साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी की तो आप हटा देते हैं, गाजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं। ये एक्सटेंशन न सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं तो आज कहाँ है JIT, तो आज कहाँ है वो सब, आज वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा। कैलिब्री क्वीन आज सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। ये अदालतों में रोते और कैमरे के सामने विक्ट्री का निशान बनाते हैं। बाबुल खुसूसी शहबाज गिल की मरीम नवाज पर तनकीद, बोले पानामा नाअहल और मफरूर बड़े मियाँ की करप्शन की दास्तान है। बजाय अपने गुनाह, अपने मजमूम किए हुए जो आपके हरकत थी फाइनेंशियल, उनका जवाब देने की बजाय आप आज भी ये बातें दूसरों पर डाल रहे हैं कि आपके मुकदमात इंजीनियर्ड हुए। आपके मुकदमात इंजीनियर्ड नहीं हुए, असल में आप लोग खुद पूरे के पूरे इंजीनियर्ड और फेक लोग हैं। जिसके ऊपर भी आप इंजीनियर्ड करने का इल्जाम लगाते हैं, क्या उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? क्या उन्होंने आपको जालसाजी से एक ट्रस्ट डीड बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने को कहा था? क्या उन्होंने आपको कहा था कि आप कैलबरी फॉन्ट को उसके आने से भी पहले इस्तेमाल करें? क्या उन्होंने कहा था कि हजूर ये हम वज़राए वो खाली कागज दिखाएं और बाद में उन कागजों समेत भाग जाएं? क्या उन्होंने ये कहा था कि ये कतरी खत जो है यही वाहिद रसीद है इसकी? किसी ने आपके बारे में कुछ इंजीनियर्ड नहीं किया। असल में आप लोग खुद एक पूरी की पूरी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हैं। पूरी दुनिया इदारों की सलाहियतों को तस्लीम करती है। पाक फौज और इदारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन हैं। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब नून से शीन निकलेगी वाली बात की तो मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ ने अगर वापस आना है तो 24 घंटे में उनका पासपोर्ट बन सकता है। अदारे को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बना लें, अदारा जो है पाकिस्तान की जमानत का सिंबल है। ये एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता और निकलेगा भी नहीं, लेकिन जरा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदारे जो है सारी दुनिया में उनकी सलाहियतों को और उनकी कारकर्दगी को तस्लीम किया जाता है। पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इख्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इस मुल्क की मीडिया की आजादी है कि देखें इतने हसास अदारे पे भी लोग बातें करते हैं। दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं। जब मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी तो आप मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं नवाज शरीफ के सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। अगर आना है तो 24 घंटे के अंदर उसको पासपोर्ट बनता है। इन्होंने आना नहीं, इन्होंने गंद करना है। इस सियासी गंद की ज्यादा छींटें इन्हीं पे पड़ेगी। बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। अलविदा उमर शरीफ।
लेजेंडरी अदाकार को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई, जिसमें अजीज अकारिब, फनकार बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मनो मिट्टी तले चला गया। अजीम फनकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर इत्तलात सईद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब, फैसल ईदी, सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत फनकार बरादरी और मद्दाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम के जमे गफीर के बाइस उमर शरीफ पार्क के मरकजी गेट को बंद कर दिया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने अजीम अदाकार को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसे जन्नत भी नसीब होगी और उनके घर वालों को भी सब मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। एक अजीम शख्स को आज खो चुके हैं। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार भी गमजदा नजर आए। मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर रो के दिखाओ, आंख को गीला किए बगैर, ये उमर शरीफ का वस्फ था। उसके कमी के खला को पुर करना आसान नहीं है। शोबिस शख्सियात का कहना था कि उमर शरीफ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उमर शरीफ का कोई नेम बदल नहीं है और मेरा ख्याल है कि सल्तनत मज़ा का ये असल बादशाह उमर भाई जो है ना वो बहुत बड़ा एसेट पाकिस्तान का खजाना, पाकिस्तान के बेटे, कराची के बेटे, आंसू चुराए हैं और मुस्कुराहटें बिखेरी हैं उन्होंने। एक अजीम शख्सियत जिसने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। उमर शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। उमर शरीफ की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पोलियो खात्मे के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में रवा साल पोलियो वायरस का एक केस रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमायां कमी आई है। बिल गेट्स ने पोलियो के खिलाफ कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की और ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स ने अफ़गानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर तशवीश का इजहार किया और पोलियो मुहिम दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आला पंजाब ने फयाजुल हसन चौहान से तीसरी बार तर्जुमान पंजाब हुकूमत का ओहदा वापस ले लिया। हसन खावर को तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि हो सकता है वो अच्छी तरह तर्जुमानी नहीं कर सके, इसीलिए उन्हें ओहदे से हटाया गया। अल्लाह पाक के करम से मुझे इल्म नहीं है, ठीक है जी। मैं तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के इमेज को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्लियामेंटेरियंस को साथ लेके, अली हैदर गिलानी साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उनको साथ लेके हम यहाँ पे इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ही लोग मुझे बता रहे हैं कि तर्जमान के ओहदे से हटा दिए। मेरा ख्याल है कि मैं अच्छी तर्जमानी नहीं कर सका, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तर्जमानी का फरीज़ा ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे सका। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का प्रोगेटिव है, वो जिसको मर्जी अपना तर्जमान बनाए, तो उन्होंने तर्जमान बना दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ के नाम पर कोरोना वैक्सीन की 3 जाली एंट्रीज के बाद उनकी मरहूम अहलिया कुलसूम नवाज और इसाक डार की भी जाली वैक्सीनेशन कर दी गई। महकमा सेहत ने कार्रवाई के लिए FIA को मरासला लिख दिया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मरहूम अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसाक डार के नाम पर भी कोरोना वैक्सीन की फेक एंट्रीज मंजर आम पर आ गयीं। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज को 5 अक्टूबर को मेलसी में पाक वैक कैंसाइनो की सिंगल डोज लगाई गई। लंदन में मुकीम इसाक डार के नाम पर भी 5 अक्टूबर को हेल्थ यूनिट DHA मुल्तान में चाइनीज कैंसाइनो की सिंगल डोज फेक वैक्सीनेशन एंट्री की गई। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद महकमा सेहत पंजाब ने भी फेक एंट्री की तस्दीक की है। महकमा सेहत पंजाब ने मुल्तान और मेलसी के सेंटर्स के वैक्सीनेटर्स आशिक हुसैन और शमीला रसूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को मरासला लिख दिया है। फेसबुक को अपनी फेस सेविंग की फिक्र हो गई। अमरीकी हुकूमत की जानिब से अपनी एंटी ट्रस्ट केस में सोशल मीडिया जाइंट को हिलाकर रख दिया। हुकूमत के फाइल करदा केस के मुताबिक फेसबुक ने अपनी मोनोपोली पावर का सोशल मीडिया में गलत इस्तेमाल किया।
फेडरल ट्रेड कमीशन का कहना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को खरीद कर अपनी इजारादारी चाहता है ताकि सोशल मीडिया के मैदान में उसका कोई मद्दे मुकाबिल ही न हो। अमरीकी सेनेटर्स और डेटा इंजीनियर्स भी फेसबुक के इस्तेमाल को बच्चों के लिए मुज़र करार दे रहे हैं। वाज़ेह है कि अमरीकी फेडरल रेगुलेटर्स और 45 स्टेट प्रोसिक्यूटर्स ने फेसबुक पर केस दायर किया हुआ है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।